Ji, my dear students, let's do now this part of the book. Do you know the parts used to make this book came from a tree? Paper is made from wood. Wood is finely chopped and mixed with water to make a soft pulp. The pulp is then turned into paper. जो भी important part आपका ये होगा do you know, इसको आपने objective के point of view से ज़रूर learn करना है और आपने कोशिश करनी है कि इसको टिक करके जो important points है उसको ज़रूर underline करना है. For example, अगर मैं कहूँ तो इसमें ये वाली line बहुत important है कि अगर हम पूछा जाए कि from where paper is made, from what paper is made, या मतलब कौन सा material use होता है paper को बनाने में, तो it is wood. wood को finely chop किया जाता है पाउडर फॉर्म में, फिर उसमें वाटर डाल के एक पल्प जैसा, एक गूदा जैसा मटेरियल बनता है. देन थ्रू रोलर्स एंड मिक्सचर्स को गुजारते हुए दे मेक पेपर. तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट. A plant has many different parts. What do these parts do? Let us find out. Before starting this reading of this part, I will take you to my garden from where I will show you a plant. Be with me. Dear students, can you see this plant? Yes, this is a real plant. So what things can you observe from here? Can you see the roots? These are the roots. Then this is the stem, and these are the leaves. And can you see this flower? Yes, this is the flower. These four things are the parts of a plant. यहाँ से plant water और nutrients को absorb करता है like a straw, and stem के ज़रिए फिर वो अपने leaves and flowers को provide करता है. And the leaves make food for the plant. And this is the flower of this plant. Can you see it? It's very beautiful. Yes. जी my dear students, आपने देखा कितना खूबसूरत plant था वो? Had you observed the parts? How many parts were there? There were 4 parts: flower, leaves, roots and stem. Yes, so let us begin. Flowers, phool, they are the parts of some plants that become fruit and seeds. They grow into new plant. ये जो फूल है, ये जो बेसिकली पार्ट ऑफ प्लांट है, ये फ्रूट भी बनता है और इसमें से हमें सीड्स भी मिलते हैं. ये जो फ्लावर होता है, ये बिग होकर जब ये मजीद ग्रो करता है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि फ्रूट्स बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट बियर नहीं करते. ये आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बहुत तफसील से समझाऊंगी. यहाँ पे जो आपने फोकस करना है कि दैट दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, बिकॉज इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं? सीड्स. और सीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ any plant to grow. Next is leaves. Leaves make food for the plant. ये जो पत्ते हैं, ये बेसिकली उस पौधे के लिए फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, because they take in sunlight from the air, from the atmosphere, और उसके बाद वो air and water and salt from downside, वो सारा कुछ consume करके वो उस plant के लिए food बनाता है. They also make a gas called oxygen. This is a very important part. यानी इस plant से हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन. कि हम लिविंग थिंग्स को लिव करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव. हमें जिंदा रखने के लिए कौन सा हमें गैस की ज़रूरत होती है? दैट इज ऑक्सीजन, एंड दैट वी गेट इट फ्रॉम द plant. Next is stem. Stems are the stalks that move water and food through the plant to the leaves and flowers. Stems also support the parts of a plant. ये stem basically आप समझ ले कि एक support करने के लिए है, एक plant को उसको upright position में खड़ा करने के लिए है, और ये basically यहाँ से जो food ऊपर जा रहा है through roots, वो leaves को provide कर रहा है, तो वो flowers को provide कर रहा है. इस पौधे को, इस पूरे plant को stems के जरिए basically सारा food जो होता है और food and water वो उसके जरिए move करता है. तो आप समझ लें कि इसके बगैर अगर हम देखा जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि लीव्स भी सर्वाइव कर सके, फ्लावर्स भी सर्वाइव कर सके, बिकॉज ये एक मेन सोर्स है जिसके जरिए पौधों को, जिसके जरिए पत्तों को यानी लीव्स को और फ्लावर्स को उनका फूड मिल रहा होता है, खाना और पानी दोनों.
लास्ट पार्ट इज रूट्स. रूट्स का मतलब क्या होता है? जड़ें. Roots takes in water from the plant for the plant from the soil. Root works like a straw to suck up water. They also help to hold the plant firmly in the ground. यानी आपको ये जड़ें नजर आ रही हैं. This part is called roots. ये बेसिकली इनका क्या काम होता है? ये काम करते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह सक करते हैं. जिस तरह आपको या कोई वाटर जो जूस पीते हैं तो आपने नोट किया होगा कि दैट यू पुल द जूस फ्रॉम द स्ट्रॉ. जब वो अप पोजीशन में आप पुल करते हैं तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड सक अप. तो बेसिकली ये चीज़ जो है कि आप जब वाटर पुल करते हैं ऊपर तो ये उसको प्रोवाइड करता है प्लांट को. सारा क्या प्रोवाइड करता है? बिल्कुल पौधों को पानी और खाना प्रोवाइड करने के लिए ये रूट्स हमारा मेन सोर्स है. दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड. यानी किसी पौधे को ज़मीन पे बहुत मजबूती से होल्ड करने के लिए, आप देख रहे हैं कि जड़ों को नज़र आ रहा होगा, इसको होल्ड करने के लिए हमें रूट्स की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है. तो यानी एक पौधे में अगर देखा जाए तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं: फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स एंड स्टेम. अब मैं आपको एक मजीद फटाफट से यहाँ से इस पिक्चर के जरिए दोबारा से समझा देती हूँ. व्हाट आर द मेन 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स? फ्लावर, लीव, स्टेम, रूट्स. फ्लावर, लीव्स, stems and root. These are the 4 important parts of the plant. Ji, my dear students, today we learn page number 18. Today we'll read page number 18 and 19 of our science book, and in this lecture we covered about plants, the type of plant, creepers and climbers or trees और उसकी characteristics and parts of a plant. So that is it for today. Hope that you all understood today's lecture. If there is any problem, let us know. Thank you so much. Take care, stay safe and stay connected. Allah